Hello, dear aspirants. So I hope you have enjoyed the concept talk of that is game of beta gamma function, that is part 1. So today obviously we are going to discuss the part 2. Okay. In the part 1 I have tried to introduce the basic definitions, but those are basic but very effective while addressing the problems in our exam, that is CSE and forest services. Fair. So let's continue from there itself. What I would like to tell you here is, when you talk about beta and gamma function, this is a very important part for us where we cannot ignore it because questions are directly and indirectly asked from this part. इनडायरेक्टली तो बहुत जगह हमारी लाइफ को सिंपल कर देता है बीटा गामा. ठीक है, तो आज हम करने वाले हैं, वी हैव learned already. So if you haven't attended the concept talk for beta gamma function, that is game of beta gamma function part 1, so please do attend that. Basics of beta gamma function, these are already done. We are today moving towards relation between beta and gamma function. ठीक है, under this we will have different results. ठीक है, for example duplication formula, multiple times asked in your exam to prove. तो डोंट थिंक कि वो याद कर लेंगे, याद नहीं होता है वो सीधा आपको दे के एक्सप्रेशन भी देता है, आपको याद करने की जरूरत नहीं होती है, बस उसको प्रूफ करना होता है. एंड प्रूफ के लिए वट एवर द अप्रोचेज आई डिस्कस्ड इन द प्रीवियस कॉन्सेप्ट टॉक, those are pretty much required here. Although I will be quickly revising those, still I would like to suggest you कि don't forget to attend that concept talk as well. So today's topic is gonna be very important because we will be directly involving our questions according to the demand of our exam. Fair? So let's start. So the pehla point which I want to start today is, that is relation between beta and gamma function. Clear? Okay. So dear fellows, when we talk about beta and gamma function का relationship, before that we must be clear about the definitions. So what is the definition of beta mn, beta gamma beta function? It is an integral. कौन सा इंटेग्रल? 0 to 1 x raised to the power m minus 1 minus x raised to the power n minus 1 into dx. What is the gamma function? Gamma n is an special integral of the this 0 to infinity e raised to the power minus x into x raised to the power n minus 1 into dx. Clear? अब क्या है, if you correctly remember, while doing the observations about the gamma function, I clearly told you what I told. There may be some places where I will be using, और z के फॉर्म में अगर आपको लिखने की आदत है तो z पावर n माइनस 1, that is 0 to infinity e raised to the power minus zx into, ठीक है, ये हमने किया था वहां पे ऑब्जर्वेशंस में. नहीं याद है, गो बैक टू दैट कॉन्सेप्ट ऑफ. ओके, अदरवाइज सिंपली आप x को अल्फा z या z से रिप्लेस करके भी कर सकते हैं. उसमें भी कोई ऐसा नहीं है कि मुझे आज याद नहीं है तो मैं ऐसे बोल रहा हूं करके. ओके, एनीवेज आगे बढ़ते हैं हम लोग. तो देखेंगे यहाँ पर हमें रिलेशन सेटअप करना है बीटा गामा फंक्शन में.
So one thing I have this, one thing I had this. Now how to start? Be on the board please, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चंस आर ऑलवेज प्रोबेबल. So don't think कि I am always just thinking about P by Qs. No. Conceptually, I have that much feeling कि I know over which concept the questions can be framed. So that is what I wanted to try to deliver here as well. देखिएगा ध्यान से. सबसे पहला काम होता है how to start. The very first point is how to start. So if you haven't practiced enough here, you are gonna suffer, pretty sure. इफ यू थिंक कि सपने में आया करके ऐसे और मतलब हो जाएगा, नहीं होगा. इफ यू थिंक मेरा लॉजिकल एटीट्यूड बहुत अच्छा है, हो जाएगा, नहीं होगा. मैं आपको लिख के दे रहा हूं. जब तक आपने उसको समझ किया नहीं होगा 1 से 2 बार कि कैसे प्रोसीड करना है, ये नहीं हो सकता. ठीक है, चलिए. तो हाउ वी स्टार्ट दिस? नंबर फर्स्ट, वी स्टार्ट फ्रॉम द गामा फंक्शन इटसेल्फ. ओके. So gamma function is all about 0 to infinity e raised to the power minus x into x raised to the power n minus 1 into dx. I'll be changing the color here just to make you feel that there are some things to be noted here. So what I do here is I am just multiplying with some special expression and marking the star here. So that लाइफ में आपको याद रहे कि हमने वहां पे किया क्या था. ओके. So this will become e raised to the power minus zx, e raised to the power minus zx. अच्छा, ये वाला पार्ट ठीक है. into e raised to the power minus x, x raised to the power dx. ठीक है. This is the expression we carry. Moreover, if we integrate, ध्यान से देखिएगा, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हियर. और बाद में मैं आपको यह भी सिखाऊंगा कि कैसे इसको याद रखा जा सकता है इजीली. ऑन इंटीग्रेटिंग विथ रिस्पेक्ट टू z फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी. इसको भी यहां पर हाईलाइट कर लीजिए, आपको काम आएगा ये. ठीक है प्यारे बच्चों, बहुत काम आएगा. चलिए. तो व्हेन आई से कि वी आर डूइंग दिस, तो अल्टीमेटली वी विल हैव द एक्सप्रेशन लाइक गामा n इंटू, विल इट विजिबल? थोड़ा सा मैं इधर में स्पेस लूंगा. गामा n इंटू 0 to infinity e raised to the power minus z. Just give me 1 second please. 1 second only. e raised to the power minus z and minus 1. ठीक है. x नहीं n, थोड़ा सा प्लीज n. आई एम ऑल्सो लाइक यू. ओके. तो e raised to power minus z हो गया. यहाँ से z का पावर n उस पर ऑलरेडी था, तो यहाँ m लेकर आओ, इस पास ऑलरेडी है. तो दिस इज m minus 1 dz, right? This will become 0 to infinity x power n minus 1 बाहर कर लो, अंदर में ले लो e raised to the power minus z into 1 plus x. z कॉमन ले लिया. ठीक है, ये हो गया. Here it is minus zx. तो e raised to power minus z into 1 plus x into z raised to the power m plus n minus 1 into dz outside dx. अब यहां पर फिर मैं स्टार मार्क करूंगा आपके लिए. अब हमें करना क्या है यहां पर? वी वॉन्ट टू इंट्रोड्यूस बीटा फंक्शन, राइट?
and we have already talked this in detail in the previous concept talk, that if I want to move on the beta function, then what should be the approach? अप्रोच के अंदर में वी ट्राई टू फाइंड द प्रॉपर सब्स्टिट्यूशन, और ये प्रॉपर सब्स्टिट्यूशन सपने में नहीं आता है, एक दो बार प्रैक्टिस कर लेने के बाद ही आएगा, प्रीटी श्योर। यहां पे लेकिन रिलेट हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे e माइनस जेड इंटू वन प्लस एक्स है, तो मैं इसकी जगह कुछ नया वेरिएबल लेकर आऊं और देखता हूं क्या होने की कोशिश है यहाँ पर, राइट? तो लेट्स डू दैट एज वेल हियर। तो व्हाट आई पुट, मैं यहाँ पर पुट कर रहा हूँ z इंटू वन प्लस एक्स को y, राइट? तो z के रिस्पेक्ट में वी आर टॉकिंग, सो x विल बिकम अ कांस्टेंट फॉर लाइक दिस ना, तो वन प्लस एक्स dz, that will be dy, fair or not? So just putting that here, what I will have, gamma n e raised power minus z, z का पावर m minus 1, that is gamma m, please observe my dear fellows, equal to, यहाँ पे अपने पास एक्सप्रेशन बच गया 0 to infinity x raised to the power m minus, is it visible or not? हाँ, fair 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 अभी अंदर वाले एक्सप्रेशन के लिए इफ आई टॉक अबाउट, that will become 0 to infinity e raised to the power minus by का पावर m plus n minus 1 upon 1 plus x का पावर m plus n dy outside dx। आई गेस अब आपको इतना आनंद आ रहा होगा कि पिछले क्लास में मास्टर ने क्या ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट समझाए थे पिछले कॉन्सेप्ट टॉक में। अब देखिए ना हम लोग कहां पहुंच रहे हैं, 0 टू इंफिनिटी x का पावर m प्लस n माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स का पावर m प्लस n काइंड ऑफ पहुंच रहे हैं कि नहीं बीटा फंक्शन की ओर? विश्वास दिलाइए, बहुत बढ़िया। तो दैट कन्वर्ट्स टू e रेस टू दी पावर माइनस बाई का पावर हमने वहां से लिया है, तो दैट विल बी टर्निंग आउट टू बी 0 to infinity x raised to the power n minus 1 it is, just give me 1 minute please, x का पावर n minus 1, अभी हमने रखा है z इंटू, सो here that is minus y अपॉन 1 प्लस x का पावर m plus n, here we have 0 to infinity। देखना बहुत ब्यूटीफुल एक्सप्रेशन बन रहा है, बहुत ही ब्यूटीफुल, आई एम सेइंग। चेक इट आउट प्लीज। अब यहां से क्या मिलेगा, इससे क्या मिलेगा, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। इफ यू ऑब्जर्व हियर, प्लीज ऑब्जर्व दिस, अंदर वाला एक्सप्रेशन इज नथिंग बट गामा m प्लस n। बोलो, दिस इज व्हाट, गामा m प्लस n। तो अल्टीमेटली यू हैव डियर फेलोज gamma n into gamma m equals gamma m plus n 0 to infinity x power n minus 1 upon 1 plus x का power m plus n dx। Observation of the beta function, third observation of the beta function, what क्या था ये, बोलो So this was m plus n, this is beta mn. If you haven't attended the previous concept talk, I suggest you do, बाकी आपकी श्रद्धा है, आपको करना है नहीं करना है पर हाँ, इस टाइप के कॉन्सेप्ट में अगर मजा लेना है तो बॉक्स में बंद कर लीजिए इसको, और दिस इज द गिफ्ट फ्रॉम माय साइड टू यू। इसको जीवन भर याद रखे, जीवन भर थ्रू आउट द एस्पिरेंट लाइफ याद रखिएगा, दैट इज एन एग्जाम पॉइंट फॉर यू। ओके डियर्स,
कोई दिक्कत किसी को भी? एनीवन? बहुत बढ़िया। अब आप देखिए कि किस किस टाइप से इसको ब्यूटीफुली सजाया जा सकता है। जस्ट एक मिनट में पानी पी लो ना। अब बहुत मजा आने वाला है, क्योंकि अभी पहले लेक्चर में क्या पढ़ा था? गामा फंक्शन देन बीटा फंक्शन। दूसरे कॉन्सेप्ट टॉक में हम आए तो वी हैव स्टडीड गामा एंड बीटा के बीच का रिलेशन। चेक इट आउट प्लीज, एंड इफ यू हैव एनी डाउट हियर यू कैन आस्क। So let's proceed with this type of understanding now. Another very important concept, ठीक है, देखना ध्यान से। Since beta mn अभी अभी we have established as gamma m gamma n upon gamma m plus n. If you correctly recall the previous observations of the beta function, there I clearly told कि beta mn का in terms of sine and cos we also have one expression, that is theta going from 0 से pi by 2 sine 2m minus 1 into theta 2n minus 1 into theta, right? So this is the beta mn का expression, right or not? So here we have gamma m gamma n upon gamma m plus n. ध्यान से देखिएगा। फॉर एग्जाम्पल, तो कुछ लोग इस रिजल्ट को याद कर लेते हैं, दैट इज एन एग्जाम पॉइंट फॉर देम, एंड सम पीपल जस्ट like arrange this into the simpler form. Decision is yours. जिसकी भी आपको आदत पड़ जाए, मुझे सेकंड वाले की आदत है, आपको जिस भी एक्सप्रेशन की आदत पड़े आप उसको कर सकते हैं। लेट्स से इफ आई राइट दिस थीटा गोइंग फ्रॉम 0 से पाई बाई 2 साइन 2m माइनस थीटा, तो इफ आई राइट हियर m थीटा सॉरी cos n theta d theta, okay, then this expression basically comes out to be, अब ये जो एक्सप्रेशन मुझे निकल कर आता है दैट विल बी ऑफ द फॉर्म गामा m प्लस 1 बाई 2 गामा n प्लस 1 बाई 2 डिवाइडेड बाई 2 गामा m प्लस n प्लस 2 बाई 2। प्रैक्टिस में आपको जो भी रहे, मुझे लगता है कि यहां पे क्या किया मैंने, 2m माइनस 1 की जगह m लाया, तो यहां m की जगह m प्लस 1 बाई 2 आ गया। तो कोई जादू थोड़ी हो गया, प्रीटी सिंपल। अब ये जो फॉर्मूला लिखा है इसका इतना ब्यूटीफुल यूज होता है हमारे पूरे कैलकुलस लाइक पूरे ऑप्शनल के अंदर कि हमें मजा आ जाता है। ठीक है, तो बीटा एम एन इज क्लियर और नॉट? सबको विश्वास दिलाइए, कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़े अभी। चलिए, there is one very important relation which we have here between beta and gamma, that is the duplication formula. We'll try to go for that as well. Again, approach matters. So here it is not something like कि एग्जाम में पूछा है इसलिए कर रहे हैं, नहीं भाई, नहीं भी पूछा होता तो किसी भी अंडर ग्रेजुएशन लेवल की बुक में वो रहता ही है, वो रहता ही है। ठीक है, चलिए, so let's have that duplication formula now. So I would like to write that here. We can have the heading as well, duplication formula. Again, एग्जाम में जब भी पूछा है, multiple times they have asked, be it CSE or forest services,
तो उन्होंने फॉर्मूला आपसे याद रखने की उम्मीद नहीं की है, दे हैव गिवन दैट फॉर्मूला टू यू. ओके, चले, ओनली दे हैव शोन की प्रूव दिस. तो व्हेन वी टॉक अबाउट डुप्लीकेशन फॉर्मूला, so that again I am saying CSE forest services के अंदर multiple times they have asked. So what they want, so that gamma m into gamma m plus 1 by 2, that is equal to square root of pi 2 raised to the power 2m minus 1 gamma 2m. ऐसे ही करके उन्होंने कई बार m की जगह p ले लिया, q करके कुछ भी ऐसे करके ले लिया. तो द थिंग इज दिस इज डुप्लीकेशन फॉर्मूला, इसके लिए हमें थेरेटिकल अंडरस्टैंडिंग रिक्वायर्ड है वहां पर. ठीक है, कैन यू ट्राई इट प्लीज, पॉज द वीडियो, कीजिए कीजिए, कोशिश कीजिए. हाँ, नो वन. अरे कोई तो कर दो यार. हाँ, कोई नहीं करेगा, पक्की बात है. मास्टर से ही करवाओगे? चलो यार, करवा लो. लेकिन मैं मेरे अनुभव से जो यहाँ बोलूँगा, मेरे भाई, अगर मैंने इसको 2 बार 3 बार ट्राई नहीं किया होता तो मैं आपको नहीं कह सकता कि हाँ ये मुझे आता है. बिल्कुल भी कोई लॉजिक कुछ ऐसा नहीं है कि सीधा दिमाग में क्लिक करे. हाँ, वंस यू डू इट देन यू सेटल इन योर माइंड कि अच्छा ठीक है, ये चीज ऐसे वर्क कर सकते हैं हम लोग. फेयर एनफ. चलिए, तो हाउ वी स्टार्ट, दैट इज अगेन द क्रूशियल गेम. तो आई विल बी स्टार्टिंग बिट स्लो, है ना, मास्टर थोड़ा स्लो है, ठीक. तो हाउ वी स्टार्ट दैट द थिंग्स कि चलो बीटा एम एन के बारे में हमारे पास क्या क्या है फॉर्मूला. तो बीटा एम एन, आई गेस हमने पिछले में कहीं 2 मिस किया है क्या, मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं. तो साइन थीटा कॉस थीटा वाला प्रॉपर्टी कहाँ है, इधर लिया है. नहीं, अच्छा पिछले वाले पार्ट में किया होगा आई गेस, कॉन्सेप्ट टॉक में. तो इफ़ आई हैड डन दैट प्लीज़ रेक्टिफाई. बेसिकली या तो यहाँ पे 2 आता है या यहाँ पे 2 ले लिया जाता है, बीटा एम एन बाई 2 लिखा जाता है. तो इफ़ इन द प्रीवियस कॉन्सेप्ट टॉक दिस इज मिस्ड, आई एम लिटरली सॉरी, प्लीज एडिट दैट, है ना. ओके, सो बीटा एम एन इज 2 टाइम्स 0 से पाई बाई 2 साइन का पावर 2m माइनस 1 इंटू थीटा कॉस 2n माइनस 1 इंटू थीटा. सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा यही है कि हम इसको शुरू कहाँ से करते हैं. ठीक है, द दूसरा महत्वपूर्ण मुद्दा इसका ये है कि अब हमें करना क्या है. तो एक महत्वपूर्ण आंसर ये है कि 2n माइनस 1 इक्वल्स टू 0 पुट करेंगे, और दूसरा है n इक्वल्स टू 1m पुट करेंगे इन 1. बस हो गया डुप्लीकेशन फॉर्मूला, हो गया. क्या देख रहे हैं, हाँ. तो ये जो पॉइंट है, ये जो लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस है, ये ऐसे नहीं आता है. मतलब फ्रॉम द ग्रेजुएशन ऑनवर्ड्स में फर्स्ट टाइम किया होगा तो यही समझ में नहीं आया कि पहले तो आपकी तरह सोचते ही रहे कि यहीं से क्यों स्टार्ट किया, ऐसा क्या लगाव था इसको. आर यू गेटिंग माई पॉइंट डियर फेलोज, एवरीवन. चलिए, तो जब भी आपको डुप्लीकेशन फॉर्मूला के बारे में बात करनी है, आपको ये 3 पॉइंट्स दिमाग में
याद तो नहीं बोलूंगा, लेकिन अगर आपने प्रैक्टिस की हुई है तो बैक ऑफ द माइंड में ये पड़े रहने चाहिए। और बिफोर द एग्जाम जब आपका मेंस रहेगा, उससे पहले रिवाइज अगर नहीं किया तो आप टच नहीं कर पाएंगे, क्योंकि दिस इज ऑल अबाउट दैट अप्रोच विच आई हैव बीन कंसिस्टेंटली फोकसिंग फ्रॉम द कॉन्सेप्ट ऑफ पार्ट 1 ऑफ बीटा गामा, पार्ट 2 ऑफ बीटा गामा। बोलो हाँ या ना, क्लियर है अभी? बस अब कुछ नहीं है इसके अंदर, अब हो गया। अगर आप ये पुट करेंगे n का वैल्यू 1/2, तो यहां से मिल जाएगा मुझे बीटा m कॉमा n का वैल्यू 1/2, दिस गोज टू 0 से π/2 साइन 2m - 1, राइट। तो इफ यू ऑब्जर्व, यहाँ पे क्या इसको है, जस्ट लेट मी चेक दैट, जस्ट 1 मिनट होल्ड ऑन प्लीज। साइन पावर 2m - 1 थीटा मिल गया, ठीक है। तो दैट इज साइन 2m थीटा कॉस, तो दिस विल बिकम कॉस 1/2, 1 माइनस, तो कॉस 0 1 हो जाएगा, दिस इज डी थीटा, ठीक है। इफ आई ऑब्जर्व फ्रॉम हियर, तो हियर आई विल हैव बीटा m कॉमा m, so that will be 2 times 0 से π/2 sin 2m - 1 theta into cos 2m - 1 theta. Ultimately this can be written as 0 से π/2 sin theta cos theta. अगर मैं 2 का पावर 2m - 1 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो ये मेरे को बन जाएगा, और 2 का पावर 2m - 1 से डिवाइड कर दूं, this is already like this, so this will become sin 2 theta, right? So that eventually turned out to be 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 2 का पावर 2m 0 से π/2, this will be introduced inside, so that will become sin 2 theta, उसका पावर 2m - 1 into theta। अब क्या करेंगे, 2 थीटा को t मान लीजिए, एंड दिस विल बी रिड्यूस्ड इनटू द फर्दर सिंपलर फॉर्म, राइट और नॉट? कोई दिक्कत किसी को भी? LHS में है बीटा m कॉमा m, सो दैट कैन बी रिटन एज गामा हाफ m, सॉरी, इनटू गामा m अपॉन गामा m प्लस m। दिस LHS कैन बी रिटन एज गामा m इनटू गामा हाफ अपॉन गामा m प्लस हाफ। ठीक है, यहाँ पे RHS क्या चल रहा है, 2 टाइम्स 0 से π/2 साइन का पावर 2m - 1 थीटा, लेट्स से दिस इज द इक्वेशन। अब इसके बाद में जो आपको इक्वेशन मिले उसको 3 डाल दीजिए, तो यहाँ पे जो RHS वाला पार्ट होगा इन दोनों का, वो सेम दिखने लगेगा। दिख रहा है कि नहीं, चमक रहा है कि नहीं, विश्वास दिलाइए। अरे भाई आप लोग बोलते नहीं है। इज दैट क्लियर और नॉट? सो इन दोनों के RHS से और LHS को जैसे ही कंपेयर करेंगे, मैंने कहा इसको सब्स्टिट्यूट करने के बाद, ठीक है, वी विल गेट इट प्रूव्ड। LHS of 3 equals LHS of 4। ओके, कोई तनाव किसी को, विश्वास दिलाइए। तो दोस्तों, डुप्लीकेशन फॉर्मूला फिर से मैं बोलूंगा, ऐसा कुछ नहीं है कि मुझे सपने में आ गया था और मैंने कर दिया करके, ऐसा हो ही नहीं सकता मेरे प्यारे बच्चों।
इट इज नॉट पॉसिबल एट ऑल। एक बार अगर इस प्रोसेस से गो थ्रू नहीं हुए हैं तो आप नहीं समझ पाएंगे कि मुझे प्रोसीड कैसे करना है। दैट इज द रियलिटी हियर। तो मैं अभी देखता हूँ कि मेरे पास कुछ और ब्यूटीफुल क्वेश्चंस होंगे, सो डेफिनेटली आई विल बी लेटिंग यू नो। ओके, so let's do some PYQs as well. Write a question please. लगे हाथ क्वेश्चंस भी करते रहते हैं ना। लिखा है एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन टर्म्स, अगेन अ PYQ, ओके। एक्सप्रेस द फॉलोइंग इंटेग्रल express the following integral in terms of बीटा फंक्शन। किसको करना है एक्सप्रेस? 0 to 1 x raised to the power m 1 minus x square raised to the power n into dx, where m is greater than -1, n is greater than -1। फिर अब देखिए, be it the part 1 of this beta gamma, be it this part 2, as I promised in the part 1 ki we will do some PYQs. Why I am like insisting on developing the approach? Every time I am saying develop this approach of the substitutions. So here it is the PYQ for you. Be on the board please. देखिए आराम से, बिना किसी तनाव के। बोल रहा है एक्सप्रेस, सीधा सीधा, इन टर्म्स ऑफ बीटा फंक्शन। तो सबसे पहले तो मुझे बीटा फंक्शन का डेफिनेशन पता होना चाहिए, राइट? तो आंसर लिखना हो तो 1 सेकंड में लिख सकते थे, लेकिन नहीं, आराम से। वी नो दैट बीटा एम एन is defined as 0 to 1 x का पावर m minus 1 into 1 minus x raised to the power n minus 1, right? अभी if you observe here, ध्यान से देखना प्यारे बच्चों, here I have x, fair enough, उससे तो कोई दिक्कत नहीं हुई। लेकिन यहां लिखा है x square, means I have to have some proper substitution now. Getting? So the proper substitution क्या हो सकता है हमारे लिए? तो लेट्स डू, देखते हैं क्या होता है। ठीक है, तो दिस इंप्लाइज 2x dx इक्वल्स, अभी आई एम सेइंग कि मैं केवल एक अप्रोच बताने की कोशिश कर रहा हूं, तो पैनिक नहीं करेंगे दिस इज वर्किंग और नॉट, बट आंसर तो हम फाइनली देख ही लेंगे, उसमें कोई इशू नहीं है। बट थिंग इज वी हैव टू डेवलप दिस हैबिट, राइट? बी ऑन द बोर्ड प्लीज एवरीवन। तो अपने को बीटा एम एन किस में कन्वर्ट हो जाएगा? जो गिवन फंक्शन है, आई एम सॉरी, जीरो टू वन एक्स रेस टू द पावर m 1 माइनस एक्स रेस टू द पावर n dx। व्हाट आई एम डूइंग, एक्स स्क्वायर को पुट कर रहे हैं बाई, सो बाई का लिमिट भी 0 से 1, x विल बी बाई का पावर 1/2, सो दिस कैन बी रिटन एज m/2, this is by, this is n, and dx equals to dy upon 2x, x का मतलब अंडर रूट बाई, राइट और नॉट?
So this reduced of the form 1/2 0 to 1 बाई का पावर m माइनस 1/2, क्योंकि m/2 माइनस का पावर 1/2, तो यहां पे आ गया 1 माइनस बाई का पावर n dy। हमें चाहिए बीटा फॉर्म में, तो दोस्त हमारा काम तो m-1 और n-1 से ही चलना है, मुझे इसके अलावा और कुछ नहीं चाहिए, राइट और नॉट? तो लेट्स मैनेज। अभी यहां पर क्या होगा, दिस कैन बी रिटन एज, अगर मैं इसमें एक ऐड कर दूं एक सब्ट्रैक्ट कर दूं, तो एक ऐड करने पे क्या होगा, प्लस का 1/2 आ जाएगा, तो m प्लस 1/2 माइनस 1, दिस कुड बी रिटन एज, this could be written as n plus 1 minus 1 into dy। Eventually, अब आप देख लीजिए, अगर m, क्योंकि ये वाला जो बीटा फॉर्म हम लगाते, अगेन कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी का ये मजा है, देखिए ध्यान से, अगर हम ये वाला फॉर्म इस पे अप्लाई करते हैं तो हमें m ग्रेटर देन 0 और n ग्रेटर देन 0 वो हमारा कंस्ट्रेंट होता है। ध्यान रखिए, बिल्कुल भी मजाक में नहीं लीजिए चीजों को। दिस मस्ट बी ग्रेटर देन 0, दिस मस्ट बी ग्रेटर देन 0। So here if you observe कि for the given expression m greater than -1, so m plus 1/2, this will be greater than 0 and n plus 1 obviously greater than 1. So if m greater than 0, n greater than 0, and with this expression what I can have here, this is written as 1/2 beta m plus 1/2 comma n plus 1. So this is your final answer, but with the proper justifications. If you miss any of the word or term here, obviously you have missed something to validate your statement whatever you are writing here. Clear है अभी? तो मजा आया उस अप्रोच पे टीचर क्यों फोकस करता है इतना? एक आपके लिए गिफ्ट लाया जाए। चलिए, लेट्स हैव द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। तो द क्वेश्चन इज, देखते हैं हाउ मेनी ऑफ यू विल डू दिस। क्वेश्चन है अगेन अ p by q, ओके। evaluate I equals 0 to a x square upon अंडर रूट a माइनस x इंटू dx। ठीक है, अब ये प्रॉब्लम है अपने पास। क्वेश्चन के अंदर बिल्कुल भी ये नहीं कहा गया, बिल्कुल भी ये नहीं कहा गया कि बीटा फंक्शन यूज करना है कि गामा करना है कि प्रॉपर्टी ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल करना है, क्या करना। पॉज द वीडियो, टेक 2 minutes एंड ट्राई टू रिप्लाई। कोशिश कीजिए सारे लोग। चलो, आई होप यू हैव डन दैट, हैव ट्राइड नॉट डन। हाउ मेनी ऑफ यू हैव ट्राइड? चलिए, देखेंगे प्यारे बच्चों कि जब भी इस टाइप का एक्सप्रेशन अपने को दिख रहा है तो एक इंट्यूशन आता है, एक इशारा मिलता है अपने को कि कैसे इन प्रॉब्लम्स को आगे बढ़ाया जा सकता है। ध्यान से देखते रहना, कुछ इशारा इससे लो, कुछ इशारा इससे लो। इफ आई पुट x इक्वल्स टू a बाई, तो ये जो लिमिट है वो बाई की लिमिट 0 से 1 जाएगी कि नहीं जाएगी? पहली चीज, a स्क्वायर बाई स्क्वायर अपॉन a माइनस a बाई dx की जगह a dy। अल्टीमेटली इट टर्न्स आउट टू बी a क्यूब बाई गोइंग फ्रॉम 0 to 1। हियर इट इज। अब इसका a अंडर रूट वाला a बाहर ले लो, बाई स्क्वायर, तो ये 1 माइनस बाई का पावर -1/2 इंटू dy।
तो दिस इज 3 minus 1/2, दैट इज a का पावर 5/2 by going from 0 to 1, right? This can be written as by power 2 लिखा है तो 3 minus 1. 1 minus minus 1/2 लिखा है can be written as this, right or not? So this turns out to be a का पावर 5/2. This is what? Beta mn. Beta 3 1/2. तो बीटा mn क्या होता है? गामा m गामा n अपॉन गामा m प्लस n, गामा हाफ का वैल्यू. सो दिस टर्न्स आउट टू बी a का पावर 5/2, गामा 3 का वैल्यू फैक्टोरियल 2, दैट इज 2, गामा हाफ का वैल्यू इज रूट पाई डिवाइडेड बाई गामा 7/2. सो गामा 7/2 कैन बी रिटन एज 5/2, 3/2, 1/2 into gamma half, that is root pi. So this got cancelled. Whatever the answer, you got the final answer. Like बोलो. और आपने जो जब मैंने कहा था वीडियो पॉज करो ट्राई करो, कितना टाइम लगा आपको? ईमानदारी से कहिए, बिना झूठ मूठ के. Did you get the point, everyone? There are lot many beautiful questions here. जैसे अब मन नहीं मानता है, नहीं तो फिर क्लास ही इतना बड़ा हो जाता है यार. a माइनस एक्स वाला, वहां पे क्या सब्सटीट्यूट करना है, दैट इज द वेरी ब्यूटिफुल गेम. ठीक है, करें क्या उसको? पक्की बात है. चलिए, लेट्स हैव दैट क्वेश्चन. वाला क्वेश्चन है क्या? एक्चुअली वो इतना ब्यूटीफुल क्वेश्चन है कि मेरा मन नहीं मान रहा है. हालांकि क्लास का लेंथ अब 50 मिनट्स के ऊपर चला जाएगा, फिर भी आई एम लिटरली सॉरी. ठीक है, मतलब मन जो है ना वो थोड़ा सा लालची हो जाता है. क्वेश्चन ये है, कहाँ गया? प्रूव फॉरेस्ट सर्विसेज में पूछा था 2016. प्रूव दैट 0 to a minus x raised to the power m minus 1, x raised to the power n minus 1 into dx, that is a power m plus n minus 1 beta mn. चलिए, कैन यू टेल मी व्हाट इज द सब्स्टिट्यूशन? इसके अलावा भी एक और ब्यूटीफुल क्वेश्चन है. अरे यार तुम लोग बर्बाद हो गए. चलो, व्हाट कैन बी द सब्स्टिट्यूशन हियर? ये तो बहुत आसान है यार. एज सिंपल एज पॉसिबल. इंट्यूशन कहां से आया? लिमिट से और इन भाई साहब को देखने के बाद. और बीटा साहब जो हैं वो इधर बैक ऑफ द माइंड में पड़े हुए हैं. वो चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं कि लिमिट 0 से 1 हो, x का पावर m माइनस 1 इंटू 1 माइनस एक्स पावर n माइनस 1 टाइप हो, तो मैं मजा ला दूंगा करके. क्लियर और नॉट? चलिए, हाँ हमने और भी क्वेश्चंस किए थे, बहुत ब्यूटीफुल थे. चलो इस पे देखते हैं. अब देखो, जो क्या था हमारे पास, इसको बढ़ा देते हैं. ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है. लेट्स डू दैट क्वेश्चन नाउ. दे आस्क्ड दिस क्वेश्चन इन 4B 2019 है या 12 है, एक बार क्रॉस चेक कर लेना यार, मतलब कई बार मेरे को एग्जैक्टली पता नहीं. द क्वेश्चन इज evaluate the following in terms of gamma function. Evaluate the following in terms of gamma function. इसको इंटीग्रेशन ले रखा है 0 to a
एक्स क्यूब अपॉन ए क्यूब माइनस एक्स क्यूब डी एक्स। अब आप बोलो क्या प्रॉपर सब्स्टिट्यूशन हो सकता है आपके लिए यहां पर? ये भी झूठ मूठ का तमाशा ही है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है वहां पर। एनीवन रिप्लाई प्लीज। क्योंकि डिनोमिनेटर में आ गया तो मुझे लगा कि कुछ लोग थोड़ा तनाव खा जाएंगे, तो उनका तनाव भी थोड़ा शांत किया जाए। कैन एनीवन रिप्लाई? चलो मैं ही करता हूँ। सीधी सी बात है यार, इन साहब को देखो, इन साहब को देखो, x इक्वल्स टू ए वाई पुट कर दो एंड प्रोसीड। डुप्लीकेशन फॉर्मूला बता ही दिया, वो तो आपको चमक ही रहा होगा। एक और अगर इसको कोई बता दे तो मैं 5 रुपए एक चॉकलेट का इनाम मिलेगा। क्या लिखा है? एक्सप्रेस एक्सप्रेस ए टू बी। अब थोड़ा मजा आएगा ना, कहां से पुट एंड सब प्रोसीड करना है, राइट? तो एक्सप्रेस ए टू बी एक्स माइनस ए रेज टू द पावर एम b minus x raised to the power n dx in terms of बीटा फंक्शन। क्वेश्चन पूछा है उन्होंने 2021 में, यूपीएससी सीएसई 2021, 3C, क्वेश्चन नंबर 3C। चलो अब रिप्लाई करो प्यारे बच्चों, क्या क्या सब्स्टिट्यूशंस हो सकते हैं? एनीवन? भरोसा नहीं तोड़िए यार, इतनी मेहनत करने के बाद भी, 2 पार्ट में बीटा गामा का गेम खेलने के बाद भी अगर आप लोग ऐसे करेंगे तो नहीं बात बनेगी। बोलिए बोलिए सभी लोग, चिल्लाइए एकदम। कुछ सब अच्छा, एक्स को ए बाई पुट कर देंगे, कर लो, करो। एक्स को बी बाई करोगे, करो। एक्स माइनस ए को बाई पुट करोगे, करो। एनीवन वांट्स टू डू इट? मेरे प्यारे बच्चों, यू कुड ट्राई, पॉज द वीडियो, टेक योर 30 मिनट्स, आई एम सेइंग, क्योंकि मैं तो यहाँ 30 मिनट वेट नहीं कर सकता, वो लाइव क्लासेस में ही इस टाइप का गेम खेला जाता है। यहां पर अब मैं आपको कहूंगा कि इस टाइप के प्रॉब्लम रिपीटेडली पूछता है, और पीछे जो मैं आपके अंदर हैबिट, जो अप्रोच पर बार बार फोकस कर रहा हूं कि यार अप्रोच डेवलप कीजिए, क्या सब्स्टिट्यूट करना है। तो अगर आप यहां पर देखें कि सपने में नहीं आता है, जस्ट इन लिमिट्स को देखकर आ रहा है, देखना ध्यान से। इफ यू ऑब्जर्व लिमिट्स, मुझे लोअर लिमिट चाहिए 0, ध्यान से देखना, लोअर लिमिट 0 चाहिए। तो अगर मैं, और यहां पर या तो बाई का पावर या यहां पे बाई का पावर, क्योंकि बीटा एम एन कब मिलेगा? जब बाई का पावर m माइनस 1 इंटू 1 प्लस 1 माइनस बाई का पावर n माइनस 1 टाइप हो। एक जगह तो मुझे चाहिए ना टी का पावर या बाई का पावर, तो उसके लिए कोई एक एक्सप्रेशन को तो सिंगल मुझे टर्म में देखना पड़ेगा कि नहीं? प्लीज से यस और नो एवरीवन। तो इफ आई टेक x माइनस ए इक्वल्स b माइनस ए इंटू टी, प्लीज ऑब्जर्व। अब अगर यहां पर लोअर लिमिट की बात करूंगा और अपर लिमिट की बात करूंगा, तो दोनों की दोनों कहानी सेटल होने का चांस मेरे पास बन रहा है। अब क्या है? अब क्या देख रहे हो उधर, भट? प्यार से
लव यू, है ना। मैं थोड़ा सीनियर हूं ना आपसे। चलिए, तो अब क्या होगा, dx इक्वल्स, अब क्या हो गया काम इसका, अब कुछ बचा ही नहीं। तो लेट से ये i था, तो i इक्वल्स t गोइंग फ्रॉम 0 to 1, x माइनस a की जगह, तो दिस इज b माइनस, आई एम सॉरी, b माइनस a का पावर m बाहर ले लो, t का पावर m यहां लिख दो, b माइनस एक्स। तो b माइनस एक्स जब करोगे तो अपने को जो एक्सप्रेशंस मिलेंगे, बहुत ध्यान से देखना, अब कैलकुलेशन वाले गलती होने के चांसेस हैं आपके पास। ठीक है, कैलकुलेशन एरर यहां हो सकता है, तो बी वेरी केयरफुल डियर फेलोज। बी माइनस, ध्यान से देखते रहना, एक्स, एक्स की जगह क्या होगा, ए प्लस, आई एम सॉरी, ए प्लस बी माइनस ए इंटू टी, राइट, उसका पावर एन, और dx की जगह a माइनस बी डी टी। अब इस एक्सप्रेशन को अगर जरा सा भी जल्दबाजी की ना, तो ऐसा बैंड बजेगा तुम्हारा, t इक्वल्स 0 to 1, b माइनस ए का पावर m ये है, नीचे a माइनस बी है, तो अगर मैं माइनस वहां से कॉमन ले लूं, माइनस बाहर लिख लूं, ठीक है, तो b माइनस ए, और यहां से b माइनस ए का पावर m माइनस 1 हो जाएगा, t का पावर m को ऐसे ही लिखता हूं। यहां पर देखिए, इस b माइनस ए को एक साथ जोड़ लेता हूं, और यहां b माइनस ए लिखा हुआ है, तो b माइनस ए अगर कॉमन ले लूं अंदर से, तो मेरे को मिलेगा b माइनस ए का पावर n, और अंदर बच जाएगा 1 माइनस टी डी टी। अब पूरी कहानी शुरू होगी, और देख लीजिए, नहीं तो उस वीडियो को पहले पॉज करके उसको कैलकुलेशन खुद से करके देखते, पूरा एकदम पसीना ना छूट जाता तो बताते। यही तो गलती होने के चांस होते। अब क्या है, ये तो कांस्टेंट है, उसको बाहर निकाल दो, तो b माइनस ए का पावर m प्लस एन माइनस 1 बाहर निकल गया, हियर इट इज 0 to 1, t का पावर m प्लस 1 माइनस 1 लिख दो, 1 माइनस टी का पावर n प्लस 1 माइनस 1 लिख दो, इंटू डी टी बाहर चल रहा है, वो बीटा बन गया। से इट इज, चेक कर लीजिए, कोई डाउट होगा तो चिल्लाइए। माइनस आप चिल्ला रहे होंगे, तो माइनस हमने शायद ये वाला माइनस, यहाँ पे b माइनस ए टी लिखा है ना, तो माइनस बाहर आएगा, तो ये वाला प्लस हो जाएगा फिर। तनाव बिल्कुल नहीं लेना है। So this is the beautiful story about, this is the beautiful game about beta gamma function, which I tried to play for you. I hope you people have enjoyed both the parts. Now, there are few things which are important but very interesting as well. If you want to do those as well, like 0 to infinity x raised to power alpha minus 1 upon 1 plus x. 0 to infinity x raised to the power alpha minus 1 upon 1 plus x dx. Why it is pi upon sine alpha pi, and what are the best interpretations out of that. These things also we can discuss in extra. If you want those things from my side, I'll definitely consider. For that, don't forget to put your views. So today we have done what we have done, my dear fellows. Relation between beta and gamma function, right or not? Then we put the numericals as the supportive examples. Then we went for the PYQs, not only solving, but we analyzed those well to get the trend or categories of question what UPSC expect from us. Sorry. What UPSC expects from us, those categories of questions I tried to give you here. Also, I told you one beautiful result कि this वाला result is very useful. अगर कुछ याद ना रहे तो फिर इसको याद भी, ये तो मैंने लिख दिया था यहाँ पे, here it is.
तो डोंट फॉरगेट, अरे यार, इसको जस्ट इस रिजल्ट को भी याद रख लेंगे तो भी कई सारे प्रॉब्लम्स में हेल्प कर जाएगा ये, है ना। तो बीटा गामा में अप्रोच अप्रोच अप्रोच. If you have anything to share here, don't forget to share. I will definitely consider that. One more thing, if you have any extra suggestions for us about this concept talk series, although we are trying to include all possible dimensions here, if you have anything to suggest, do let us know. We will definitely consider those, right? And we eagerly wait for your comments, like appreciations and suggestions as well. So don't forget to put your suggestions or appreciations. We'll definitely consider those. It's good luck from my side.